Welcome to India Podcasts. सुशांत के साथ जो भी मोमेंट्स थे, स्माइलिंग मोमेंट्स थे, और सुशांत में वो एक बचपना था, एक नाइविटी और इनोसेंस उसकी बहुत बहुत अट्रैक्टिव थी। बात बात पे हंसना शुरू कर देता था, फिर बहुत काम करता था, फिर आता और वही एक बच्चे की तरह। ऐसा है हमारे बिजनेस में कि एक लोग आपस में एक जुट हो जाता है, उस जुट को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई पानी जब नहीं बनी जो सुशांत को हुई थी। मुझे मालूम है सुशांत बहुत रोया था उस वक्त। ऐसे एक्टर, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। Welcome to another episode with me, Anku Goyal. Today my show is a tribute to a young boy from Bihar who gave dreams and hopes to millions in the country. He dreamt and achieved it all. And as he said, his life story will always be remembered. Most acclaimed actor who marked excellence in all that he worked in. Yes, I'm talking about Sushant Singh Rajput. To share some happy memories and experience with him, I'm being joined by an Oscar-nominated international director, Shekhar Kapoor, who pours his heart out in this conversation as he shares some of his memories of Sushant Singh Rajput while making the movie Pani. Director Shekhar Kapoor also shares some important aspect of the film industry with us in terms of the content making and the shift in the entire business of film industry with the coming of COVID-19 pandemic situation. Thank you so much, Shekhar sir, for joining in for this conversation. You've been there talking to all of us for a long time now. It's my privilege to have you with me on India Podcast today. So thank you so much for joining in. Thank you very much, and I'm so sorry I can't come on video, but I'm high up in the mountains, and video sound is just chance. Today there are thunderclouds all over. Everywhere I can see it's raining and thunderclouds, and therefore the connectivity is low. So I'll just stay with sound right now, and next time I'll try and come on video. For sure, we're definitely looking to meet you in Bombay someday. You've been in the mountains throughout the lockdown. Is that how this things? Shekhar sir, we know things, how some things have transpired in the recent past. One, there has been this pandemic situation we are all in right now. Things have not been very positive in all terms if you try to understand. And now going further, if you're talking about the industry, let me begin with the most recent discussion that we are in to understand how the industry, the film industry is when it comes to understanding how to survive. Like till now, we were discussing survival in this pandemic situation, but now there's another issue that has been coming up is about surviving in the industry, surviving your dreams, surviving your ambitions. So I just want to begin this conversation with an understanding on that from your side. It's a tough business. It's not like a job. I used to be a chartered accountant in England before I came to this business. And everybody told me, you're crazy, you're going into one of the toughest industries in the world. It's not like it's not like you get a job and then you do the job and then your contract protects you and then you get a pension and that's, your life is that. This industry people join because of the uncertainty of it, because the uncertainty of it can propel you to the top, but the uncertainty of it could also bring you down. So it's a tough business. And if anybody, I remember, and I get it wrong, I remember long time ago, I don't know if she even remembers it, when Madhuri Dixit first came to business, she came to my house and I asked her what she did and what her sister was a microbiologist in America. And I said, well, why do you want to come to this business? Go get yourself educated. This is the worst business in the world to be in terms of the insecurities of it. And of course, she rose to the top to become the biggest star and still is. So who knows? Who knows? I was just this young girl that came with her parents. I just got very protective and I said, it's a tough business. It's a tough business. So we recently see that it's a major loss for the country that way, a talent, not just an actor, but a human being, a very talented boy, Sushant Singh Rajput. We saw him go, leaving the business if we talk about particularly his filmy career. What could have been a misunderstanding into his learning ki क्यों ये छोड़ के जाना पड़ा? ये टफ बिजनेस है, स्ट्रगल इतना किया. आई एम श्योर इवन वी सी द सुशांत का जर्नी इन फिल्म करियर. He struggled enough. He's made everything through disappointment, come back, given his best. फिर ऐसा क्या होता है कि एक मोमेंट पे जाके संभालना मुश्किल हो जाता है? It's
बहुत मुश्किल है किसी की साइकोलॉजी को पढ़ना उस वक्त जब ये हो जाता है। सुशांत तो इस बिजनेस में कई साल से था। पहले तो बहुत सक्सेसफुल एक्टर था वो टीवी पे, फिर वो कुछ डांसिंग कॉम्पिटिशन भी जीता था। जो तो मैं जब उससे पहले मिला पानी के लिए, तो पानी के लिए जब मिला मुझे ऐसा लगा एक्टर तो बहुत ही अच्छा था, लड़का भी बहुत बहुत समझदार था। तो अब क्या ऐसा हो जाता है उस वक्त में, उसमें क्या डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। तो दूसरे बिजनेस में ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि बिजनेस में लोग सुसाइड नहीं कमिट करते, ऐसा नहीं। मीडिया है ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा, बिकॉज इंडिया में हर इंसान एक्टर बनना चाहता है। मैं तो अमेरिका जाता हूँ, वहाँ बड़े बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, उनसे पूछो भैया क्या उम्मीद थी आप जब बड़े हो रहे थे इंडिया में? एक्टर बनने का बहुत शौक था। अब इट्स क्वाइट अमेजिंग कितना इन्फ्लुएंस है फिल्म इंडस्ट्री का, मीडिया इंडस्ट्री का इंडिया में। एक अफसोस आपने भी जाहिर किया कि आप सुशांत से टच में नहीं आ पाए, और आप बोल रहे थे कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से जुड़ा रहूं, तो वो एक काइंड ऑफ रिग्रेट बन के रह जाता है कि काश, बट कैसे जुड़ता है कोई आदमी? हर किसी से तो जुड़ के नहीं रह सकता हर समय। एंड पानी, एज यू सेड, वाज अ डिसअपॉइंटमेंट कि नहीं हो पाया, एंड यू स्टिल आर वांटिंग और विशिंग टू हैपन। एंड अब जिनके लिए आपने किरदार सोचा था माइंड में वो भी नहीं है। So how are you going to deal yourself with all this? आपका क्या तरीका होगा इन सब चीजों को संभाल के रखने? मैंने तो एक तरीका, एक स्पिरिचुअलिटी का तरीका, ये नहीं कि मैं रोज बैठ के पूजा करता हूँ, लेकिन अपने आप से बातें करना, अपने आप के साथ, अपने आप को हमें क्या है कि अगर जैसे सोशल मीडिया पे बैठे रहें या हमेशा दूसरे लोगों की सुनते रहें, फिर आप एक दो घंटे रोज निकालना जरूरी है जब आप कहीं वॉक के लिए चले जाएं और अपने आप से थोड़ी सी बातें कर लें, अपने आप को थोड़ा समझ लें, ताकि आप अपने आप को ना भूल जाएं। और ये अक्सर होता है तो एक डिप्रेशन में भी कि आप अपने आप से बातें करना भूल जाते हैं, अपने आप को और अपनी बातें दूसरों से बातें करने भूल जाते हैं। सुशांत के साथ तो सुशांत इतना बिजी हो गया था एक बार, मुझे ऐसे लगा कि मैं इम्पोज कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो मैंने कहा जब वो मेरी जरूरत पड़ेगी या जब उसको ऐसे लगेगा कि चलो शेखर से बात करें तो फिर कर लेंगे। लेकिन फिर फिर मैं अमेरिका में था बहुत साल, पिछले 1 साल से तो मैं वापस आया नहीं, तो फिर कभी कभी मुश्किल हो जाता है। शेखर जी, कोई यादें आप शेयर करना चाहेंगे सुशांत की, जो सबसे प्यारी याद आपके साथ है, जो सिंस हम एक तरह से इस पूरे मुद्दे में उनको भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई एक मोमेंट जो आपको याद है, जो आपको हमेशा you'll be smiling remembering that? सुशांत के साथ जो भी मोमेंट्स थे, स्माइलिंग मोमेंट्स थे। सुशांत में एक लगन थी, सुशांत में एक इतनी लगन थी कि वो मैं आपको गोरा दे दूंगा, जो गोरा कैरेक्टर का नाम है, और सुशांत में वो एक बचपना था। तो ये जो लगन है और ये बहुत आगे बढ़ के अच्छा काम करने का की लगन के साथ एक नाइविटी और इनोसेंस उसकी बहुत बहुत अट्रैक्टिव थी। बात बात पे हंसना शुरू कर देता था, फिर बहुत काम करता था, फिर आता और भाई एक बच्चे की तरह आकर कहता सर कैसा किया, अच्छा किया, ठीक है ना, नहीं तो कुछ और चाहिए आपको, मैं और कुछ और भी करके दिखा सकता हूँ। तो एक कांस्टेंट था सुशांत के साथ। तो ऐसे एक्टर, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जिनको आपको लगता है यार सुशांत अगर 3 बजे भी रात को आ गया, अच्छा है, कोई बात नहीं, सुशांत के साथ अच्छा लगेगा बैठे। तो इनोसेंस भी था, कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेता था। मैं तो सुशांत तुझे क्या जरूरत है इतनी बड़ी मोटरसाइकिल और इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने का, तुझमें क्या कमी है? हंसने लगता था। सर बचपन का है, तब जब छोटे शहर में ऐसे लगता था कि ऐसी एक गाड़ी होगी, एक दिन हो गई तो कर लिया मैंने। तो वेरी वेरी सेंस ऑफ very innocent guy, very beautiful man. Yeah. We have some guest callers since आप वीडियो पे नहीं हैं. I will request all my guest callers to be on the screen. On the left is Manish और नीचे आशीष हैं, right में मेरे साथ राजेश है, एक डायरेक्टर है, आशीष is a director, Manish is into video editing and he is a writer as well, and Rajesh, he is working with camera with various movies. सर इससे पहले कि हम आगे सबको क्वेश्चन ले, एक छोटा सा बस 5-7 मिनट और मैं आपसे कई छोटा सा चीज पूछना चाहती हूँ। सुशांत के
जाने से सबको कहीं ना कहीं एक सेटबैक सा हो गया. इवन ऑनेस्टली आई बिलोंग टू अ डिफरेंट प्रोफेशन, ऑल ऑफ अस हैव अ डिफरेंट करियर एंड एम्बिशन, बट वो जो सेटबैक था वो सिर्फ इसलिए नहीं था बिकॉज वी सॉ एन एक्टर ओनली लीव. ऐसा लगा कोई ड्रीम देखने वाला छोड़ दिया. सडनली जिन्होंने लाइफ में ड्रीम देखा है या बहुत स्ट्रेंथ के साथ हम एम्बिशन से आगे निकलते हैं घर से, वो एक सडन धक्का लगा. नॉट इट इज अ पर्सनल वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ, बट उसने काफी डरा दिया सबको. तो मतलब ऐसा क्या है, इवन आपके ट्वीट में हम समझ नहीं पाए क्लियरली कि क्या मैसेज आ रहा था, कि ऐसा क्या है जो इंडस्ट्री में संभल के चलने की जरूरत है व्हेन यू गो इनटू इट, एंड किस तरह से एक आदमी खुद को आगे एम्बिशियसली ग्रो करे. आई मीन दैट इज द वे टू आस्क इट. पहला सवाल तो आसान है, दूसरा सवाल तो बहुत इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं, आप कौन हैं. पहला सवाल तो सुशांत छोटे शहर से आया था. सुशांत वो कभी भूला नहीं कि मैं छोटे शहर से आया हूँ. और क्या लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि सुशांत बहुत स्टार की तरह नहीं बिहेव करता था, स्टार की तरह एक्टिंग नहीं करता था, रियलिस्टिक एक्टिंग करता था. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लग यार सुशांत एक वो आइडियल बन गया था लोगों के लिए कि एक छोटा शहर का लड़का कुछ ड्रीम करे तो आकर आगे बढ़ सकता है. तो बहुत लोग उसको इसलिए प्यार करते थे कि वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता था, पिक्चरें अच्छी करता था ज्यादातर, और फिर भी वो सुशांत ही रहता था. वही एक छोटे शहर का लड़का आया है, तो वो बहुत he was just giving a lot of people hope that we can dream. He was doing that, we can dream. So Sushant's career and his success was giving dreams to many other young people. And तो when he passed away तो सबको लगा एक ड्रीम खत्म हो गया. तो क्योंकि वो मनोज और मैं इसलिए कहते थे लोगों को गुस्सा इतना क्यों आ रहा है सुशांत के पासिंग पे. गुस्सा इसलिए आ रहा है कि किसी ने हमारे सपने को, हमारा जो अपना सपना है वो लेकर उसको खत्म कर दिया, अपने सपने को. और दूसरा जो आपका सवाल है एक्टर आगे कैसे बढ़ रही है डायरेक्टर, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मुझे नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन इतना बड़ा स्टार बनता अगर उसने सोचा होता कि मैं आगे कैसे बनूं. जो सामने आपके आता है उसको आप ऑनेस्टली करें, दिल से करें, तो फिर आगे बढ़ जाता है. लेकिन ये है कि ऑनेस्टली आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर योर सक्सेस इज अ लिटिल ईजियर देन if you just do it like, oh, I'm going to be how can you do that? How can you just say, acha, I'm going to go into this film and I'm going to be a big star in this film? No, you can just be honest. Beyond that, there's nothing you can do. शेखर जी, मैं आशीष से पूछूंगी. आशीष, आपका सवाल था. So he's there. So good to talk to you. I wish I could see you as well. So actually, ये फॉलो अप ही है अंकु का जो अभी लास्ट क्वेश्चन था उस पे, राइट. सो आपने जैसे बोला सुशांत सिंह कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन एंड ही स्ट्रगल्ड. उन्होंने मतलब एक ड्रीम देखा एंड ही एक्चुअली फुलफिल दैट ड्रीम. मतलब ही वाज इन द मेन गेम, राइट. मेन मूवीज, बड़ी मूवीज में मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल मिलना हर एक को नहीं मिलता ये चांस, राइट. और उन्होंने वो फेस कवर करके अपना राइट अपना वो ड्रीम कंप्लीट कर लिया. एंड देन दिस न्यूज कम्स इन एंड उसके साथ साथ देयर इज दिस होल अदर थिंग दैट इज अनकवरिंग right behind his actions, right, behind what happened, right. So I just want to ask you, like, as an outsider, I've been working for the past 6-7 years as a director and as an aspiring director who wants to make movies in the future. I just want to know कि जो ये spider web जिसको बोल सकते हो आप, वो इतना strong है कि किसी एक outsider को इतना extreme way में push कर सकता है, इतना extreme decision लेने के लिए. मेरी कहानी, मैं अपनी कहानी से जोड़ूं तो ट्रेजेक्टरी कुछ अलग है. सुशांत की कहानी की ट्रेजेक्टरी, उसकी पूरी जर्नी अलग है. ऐसा है हमारे बिजनेस में कि एक लोग आपस में एक जुट हो जाता है, उस जुट को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है,
वो टेलीविजन में भी है, एक जुट जिसको कहता हूँ मैं, उस जुट में अगर आप नहीं बिलोंग करते तो फिर आपको नहीं पता होता आप कौन सी फिल्में बन रही हैं या किसको अप्रोच कैसे करना है। हाँ, इस जुट को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी ट्रेजेक्टरी अलग थी। मैं आपको एक कहानी बताऊं कि जब मासूम बन गई थी तो मुझे नहीं पता था कि कोई खरीदेगा भी, मुझे क्या मालूम था। तो मासूम जब फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई तो उन्होंने देख ली और बहुत अच्छी प्राइस मिल गई प्रोड्यूसर को। तो जब पहले दिन मासूम रिलीज हुई तो मेट्रो में रिलीज हुई थी मुंबई में, तो मैं गया तो मैंने कहा चलो देखते हैं हमारी पिक्चर कैसी चल रही है। तो पूरे हॉल में 3 लोग बैठे थे। तो तो 3 लोग जब बैठे थे तो मैं जब बाहर आया तो एक आदमी आया, बहुत गालियां दी उसने मुझे। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? कहता आप डायरेक्टर इस फिल्म के? हाँ, मैंने कहा हाँ मैं डायरेक्टर हूँ। तो उसने कहा यार आपकी प्रॉब्लम है कि आपने बहुत ही एक आर्टिस्ट फिल्म बना दी है ना, और मैं ब्लैक करने वाला था, मैंने इतनी टिकटें खरीद ली और मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। अब देखिए फ्राइडे को रिलीज हुई, कोई नहीं गया, सैटरडे को कोई नहीं गया, संडे को हॉल खाली थे, मंडे को हॉल खाली थे। मंडे को डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया मुझे कि शेखर आई एम सो सॉरी, पिक्चर फ्लॉप हो गई आपकी, हम हॉल छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत तो हॉल का किराया दे रहे हैं और पिक्चर देखने को आया नहीं है। मैंने कहा यार ठीक है, अब गई, हमारा करियर भी गया, पिक्चर भी गई। ट्यूसडे भी वैसा ही गया, वेंसडे भी वैसा ही गया, तो एक हफ्ता तो ऐसे निकला कोई गया ही नहीं पिक्चर देखने। थर्सडे को लोग आने शुरू हो गए। अब क्यों आने शुरू हो गए मुझे क्या मालूम, उन दिनों तो सोशल मीडिया भी नहीं था। थर्सडे को जब लोग आने शुरू हुए तो उसके बाद 10 हफ्ते तक टिकटें नहीं मिलती थी उसकी, मासूम की। तब तक हमने हॉल भी छोड़ दिए थे, तो वो हॉल वापस लाने मुश्किल हो गए थे। तो क्या व्हाट हैपेंड ऑन थर्सडे आई विल नेवर वर्क आउट, नेवर। तो अलग अलग ट्रैजेक्टरीज होती है, लोगों की अलग अलग कहानी होती है। Nobody has the same story. Everybody has a different story to tell. Yeah. Ashish got the answer there. Rajesh, आपका question. Hi sir. Hi Rajesh. Hi sir. सर आपकी हिंदी सिनेमा को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। काफी समय हो गया है आपने हिंदी सिनेमा को आपने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, इसके पीछे वजह क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। और सर दूसरा सवाल ये भी है मेरा कि अभी ये वेब सीरीज का दौर चल रहा है, तो आपको हम फ्यूचर में देखेंगे वेब सीरीज में आप डायरेक्ट करते हुए? जी, पहला क्वेश्चन ये कि मैंने बहुत कोशिश की थी, मैं इंडिया में आकर पानी बनाना चाह रहा था। जी जी। 4-5 सुशांत के साथ जी। तो हमने बहुत काम किया, स्क्रिप्ट लिखी, रिहर्सल्स किए। कुछ एक एडिक्शन हो जाती है ना, जैसे किसी सब्जेक्ट के साथ आपको लगाव हो गया तो जब तक वो सब्जेक्ट आपके रूह में नहीं बैठ जाता तब तक आपको मालूम है आप फिल्म वो बनाएंगे अच्छी नहीं बना सकते। लेकिन एक बार वो जो सब्जेक्ट आपके रूह में बैठ जाता है तो उसको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप फिल्म बन जाते हो। जैसे वो जो पानी में जो मेन कैरेक्टर उसका नाम है गोरा, अब जब सुशांत रिहर्सल कर रहे थे तो रोज 3-3 बजे मेरे घर आ जाते थे कि या गोरा अगर ऐसे देखता हो या गोरा ऐसे चलता हो या गोरा का, तो एक हफ्ते में वो वेट लूज करके आ जाते थे। शायद गोरा बिकॉज पानी कम है तो उसकी ये बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो फिर एक हफ्ता कहता है सर आपको एक हफ्ते में लूंगा, फिर दुबले होकर आ जाते थे। तो अब उसको आपकी जब तक बिल्कुल आपकी रूह में फिल्म ना घुस जाए तब तक आपको मालूम है कि आप ऑनेस्ट फिल्म नहीं बना सकते। लेकिन अगर वो फिल्म जब नहीं आपको लगता है वो प्रोड्यूसर नहीं बनाने वाले पिक्चर, तो फिर वो उस रूह से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वही डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई पानी जब नहीं बनी, जो सुशांत को हुई थी। मुझे मालूम है सुशांत बहुत रोया था उस वक्त जब नहीं बनी, और मैं तो बाहर चले गया, फिर वापस चले गया। मैंने कहा कुछ ना कुछ और बाहर करूंगा मैं, क्योंकि इंडिया आऊंगा तो सिर्फ पानी ही बनाऊंगा और कोई पिक्चर नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए मैं इंडिया नहीं आया वापस, इसीलिए नहीं आया। इतने साल हो गए, इतने साल गुजर गए, लेकिन पानी से अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, पानी से अच्छा कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं मिल रहा, पानी से कोई ज्यादा रेलेवेंट बात जो है पानी की, जो पानी की कहानी हिंदुस्तान में है या पूरी दुनिया में है, उससे बेहतर कोई, तो खैर वायरस आ गया, लेकिन उससे पहले तो ऐसे था कि पूरी दुनिया अब पानी को तरस जाएगी। उससे पहले कि पानी को तरस जाए, पानी के शॉर्टेज की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ जाएं और लड़ाइयाँ और वॉर्स हो जाएं। मैंने कहा मैं इसको फिर बनाकर एक बना देता हूँ। तो ये तो पहला सवाल, मैंने पानी के बारे में बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन इसलिए कुछ ऐसा दुख
बैठा हुआ है मेरे में कि मुझ में कि अगर बनानी है तो पानी ही बनानी है। बाकी वेब सीरीज मैं कर रहा हूँ। अमिताभ घोष बहुत फेमस राइटर हैं, उन्होंने एक ट्रिलॉजी 3 किताबें लिखी जो बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, ओपियम वॉर्स पे। तो ओपियम बनता था और सब ग्रो होता था वहाँ बंगाल में, वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अंग्रेजों ने लगा दी थी और वो ओपियम वहाँ उसको पैक करके फिर चाइना भेज देते थे और चाइना में लोग एडिक्टेड होते थे। और फिर जब चाइनीज वहाँ तब एम्परर थे, जब उन्होंने कहा कि ओपियम लाना चाइना में बंद कर दो, तो फिर बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अमेरिका और अंग्रेजों मिलके फिर उन्होंने हमला कर दिया चाइना के ऊपर कि हम आप हमें वो ड्रग नहीं बेचने दे रहे, फ्री ट्रेड है, आपके लोग चाह रहे हैं कि हम ड्रग चाह रहे हैं तो आप हमें बेचने दे रहे, ये एंटी फ्री ट्रेड है। तो वो पहला इंसिडेंट था हमारे दुनिया में आजकल फ्री ट्रेड को लेकर, लेकिन ड्रग के ऊपर। तो जब ओपियम ट्रेड खत्म हुआ तो एकदम अंग्रेजों ने बंद कर दिया। अब वहाँ वो खाना वो कोई अनाज तो उगा नहीं रहे थे, ओपियम उगा रहे थे, तो बहुत बड़ा फैमिन आया था। और वो कैरेक्टर्स हैं और अमिताभ घोष की किताबें खरीद के हम उस पर एक सीरीज बना रहे हैं। मनीष, आपका सवाल से हाँ। यस, हेलो सर। So interesting to listen to you, शेखर जी। इतना we're getting so many stories. It's just that आप चुप हो जाते हैं, हमें लगता है कहानी खत्म कैसे हो गई। Go ahead, Manish. Go ahead. Yes, hello sir. It's really a privilege for me to talk to you because we have grown up watching your movies. Mr. India का शायद हर एक सीन मुझे याद होगा अभी, और वो मेरी आंखों के सामने भी आ रहा है कि I'm talking to the person who's really entertained us so much, and I would have loved to talk to you more about films. परंतु ये समय शायद कुछ और किसी और चीज का जो मेरे मन में है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर कि कमिंग बैक टू द फिल्म इंडस्ट्री, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं किसी की इंसल्ट करना एक आजकल फैशन हो गया है, फिर भले वो किसी टीवी शो में हो या अवार्ड शोज में हो। एंड इफ आई वुड लाइक टू नेम अ फ्यू पीपल लाइक आशुतोष गवारीकर और नील नितिन मुकेश और विवेक ओबरॉय और सुशांत सिंह, ऐसे कई लोगों को एक टारगेट किया जाता है, इस तरह से हमें लगता है। आप एक वेटरन है सर फिल्म इंडस्ट्री में, आपका मैंने अभी टैग भी देखा कि आपने लिखा है एग्जिस्ट इन केओस। तो कभी कभी दूसरे आपकी पर्सनल लाइफ में एक हक जमाने की कोशिश करते हैं सर, और यदि मैं महाभारत के काल से इसे रिलेट करने की कोशिश करूं तो इस तरह के लोग आज अभिमन्यु की तरह सर किसी न किसी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और वहां जाकर उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। So as a veteran, it is my request or a question or an appeal to you sir that going forward, because आप spiritually भी बहुत inclined हैं, क्या एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है जहां पर इस तरह के लोग जो कि मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं और उन्हें पता नहीं कि हम अब क्या करें, कहाँ जाएं, बी इट पीपल हु आर एक्टर्स और पीपल बिहाइंड द स्क्रीन्स, क्या उनके लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाने की जरूरत है जहां पे वो जाकर अपनी कम से कम बात कर सकें और उसके बाद जो वो डिसीजन ले वो उनका अपना होगा, पर एक वन ऑन वन करने की कहीं आवश्यकता है। विल यू बी एबल टू सर सेट अप some sort of a support system, or you think it should happen in India sir at least? जी, पहला सवाल आपका आसान है। ये जो ट्रोल करते हैं, लोगों को गाली देते हैं, मैं काफी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, और जब लोग सडनली ट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो मुझे मालूम है कि वो ट्रोल्स हैं। यू नो, ये कोई असल में कोई लोग नहीं है, ये तो किसी की पब्लिसिटी मशीन चल रही है। कि ट्रोल चलो, अभी सुशांत के ऊपर मैंने कुछ स्टेटमेंट दी, उसके ट्रोल्स आ रहे हैं, ये मुझे साफ पता चलता है क्योंकि उस ट्रोल में जो लफ्ज है वही होते हैं, सेंटेंस अलग होता है लेकिन वो तरीका वही होता है। तो मैं जब देखता हूँ, सुबह उठता हूँ तो सडनली ट्रोल्स इतने आ जाते हैं, तो मुझे मालूम है उस वक्त कि भैया कोई बहुत पैसे खर्च करके कोई उनके पास हैं ऐसे 1000-2000 लोग बैठे जो करते रहते हैं, ट्रोल करते रहते हैं, तो उसको सीरियसली नहीं लेता मैंने जो बात कहनी थी कह दी, तो जिन्होंने समझनी थी वो समझ गए। अब ट्रोल्स का काम है कि किसी उस सब्जेक्ट को चेंज कर दो, आप किसी और को चेंज कर दो, अब उनकी प्रॉब्लम है, मैं उसको देखता नहीं। दूसरा सवाल आपका, क्रिएटिव बिजनेस में और बहुत जो क्रिएटिव लोग हैं, हमारे लिए आप तो
डायरेक्ट आपने भी देखा होगा। आप क्या करते हैं एक बार फिर बताइए। I've been an editor, sir, a video editor for the last 20 years Okay. for television industry and news channels. Yeah. See, you must have seen, आपको पता है सेट पे वो डायरेक्टर पागल लगता है थोड़ा। क्रिएटिव हाई एक चीज होती है जिसको हम पालते हैं, वो हमारे लिए सब बहुत बड़ी चीज है। और अगर वो क्रिएटिव हाई ना आए तो मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ तो मैं शॉट क्यों कैसे लेता हूँ मुझे कैसे मालूम होगा क्यों लेता हूँ। मैं प्लान तो करके जाता हूँ ऐसे लूंगा शॉट ऐसे लूंगा, लेकिन उस वक्त सेट पे उस वक्त जाके अब वो डिसीजन लेना है तो वो मैं चांस पे छोड़ देता हूँ अक्सर कि यार ये तो सोचा तो था मैंने कल रात को, पूरी शॉट डिवीजन तो की थी। आप तो देखते हैं एज एन एडिटर डायरेक्टर की शॉट डिवीजन आपको पसंद आती है नहीं आती है, उसको चेंज भी कर सकते हैं आप। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ सेट पे तो फिर एक मोमेंट आता है जब 250 लोग सेट के देख रहे होते हैं सर शॉट क्या है, और उस वक्त मैं सोचता हूँ नहीं ये जो शॉट जो मैंने सोचा था वो तो सोचा था, लेकिन असलियत तो अब है, इस वक्त है, इस वक्त क्या रेलेवेंट है, उस वक्त आपको क्रिएटिव हाई की जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूँ हम उस वक्त मुझे ऑलमोस्ट आई बिकम स्किज़ोफ्रेनिक कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ पीछे। मैं चाहता हूँ आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि शायद ये मोमेंट शायद कुछ और चीज मुझे बताएगी ये शॉट क्या होना चाहिए, और जब वो चीज आती है तो वो आप अपने मन को अलग रख देते हैं, अपने ईगो को अलग रख देते हैं, अपने पूरे प्रेपरेशन को अलग रख देते हैं। तो उसकी वजह से हाईज और लोज बहुत आते हैं। जब एक बहुत बड़ा क्रिएटिव हाई हो, जैसे अगर पता नहीं आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, मैं तो बहुत करता था, माउंटेनियरिंग बहुत करता था, लेकिन अब जब आप क्लाइंब कर रहे हैं माउंटेनियरिंग कर रहे हैं नीचे देखो तो ऐसा लगता है कि अब मर जाओगे गिर जाओगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आप नीचे देखते रहोगे अपना सेफ्टी नेट तो होता नहीं है, और सेफ्टी नेट को देखते रहोगे कि गिर गया तो ठीक है यहाँ नीचे सेफ्टी नेट है, लेकिन फिर आगे आगे कदम लेना वो एक एक्सट्रीम आपको हाई चाहिए, एक सेंस ऑफ एडवेंचर चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में भी और क्रिएटिविटी में भी। तो उसकी वजह से हम अपने आप को अपने मन को एक तरफ पुश करते रहते हैं, और फिर जब वो आप सेट से वापस आते हैं तो आपका मन थका होता है, आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं, और वो नॉर्मल सी कभी कभी वापस आती नहीं है। वो नॉर्मल सी कभी कभी क्रिएटिव बिजनेस में फिर कैसे हो नॉर्मल। अभी तो मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा था, 29,000 फीट पे था, ऑक्सीजन कम था, गिरने का इतना डर था, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था। अब मैं घर में रात को बैठा टेलीविजन देख रहा हूँ। अब मैं कौन हूँ? उस वक्त मैं कौन था? और अगर वो जो मैं था जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गया, तो वो तो फिर मुझे चाहिए दूसरे दिन। तो क्या मैं वो उसको छोड़ दूं और फिर नॉर्मल हो जाऊं, आराम से लेट जाऊं, टीवी देखूं, वही नॉर्मल एक इंसान है बैठा हुआ है, और कल फिर उसको कैसे फिर बेकर करूं, फिर कैसे करूं? वो जो एक एक्सट्रीम हाई है जिसमें आप वो बातें और वो शॉट और वो क्रिएटिविटी एक्सेस करते हैं। आपकी अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती, आप एक्सेस करते हैं, यूनिवर्स से आप एक्सेस करते हैं। तो उसके बीच में रोज वहां करना, फिर वापस आना, फिर वहां करना, वो वापस आना, ये आपके मेंटल स्टेट के लिए। और इसीलिए अक्सर जो फिल्म मेकर्स हैं, जो बहुत क्रिएटिव लोग हैं, यहाँ के इंडिया में क्या पिकासो को देख लीजिए, वो उसी की बात में कहते हैं कि उसी की बात करते थे। वैन गॉग इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, वो मेंटल असाइलम में चले गए। तो वो बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए हमारे लिए हम जो क्रिएटिव लोग हैं, ये बात जरा बहुत गौर से देखनी चाहिए। तो आपका जो सवाल है, एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, क्योंकि हिंदुस्तान में बाहर तो है, लेकिन बाहर भी बहुत एक्सट्रीम हो जाती है कभी कभी। हम डिप्रेशन कहते हैं तो कहते हैं आज दिन नहीं अच्छा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। अब ये कौन सी डिप्रेशन है? मैं डिप्रेस्ड हूँ तो वो तो एक आम लफ्ज बन गया, अरे यार आज बहुत डिप्रेस्ड हूँ मैं। तो ये कौन सी डिप्रेशन है? ये क्लिनिकल डिप्रेशन है कि ये शाम की बात है, या आपको विस्की की जरूरत है उसके लिए आपकी डिप्रेशन गई? मेरा जो बेस्ट ड्रग है वो कॉफी है। सुबह अगर मैं कॉफी ना पीऊं तो मुझे ऐसा लगता है यार दिन चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो वो भी डिप्रेशन। और कॉफी पीऊं तो ऐसे लगता है कि भाई कितनी अच्छी जिंदगी है। तो क्या मेरा मन कॉफी पे डिपेंडेंट हो गया? डिप्रेशन असली डिप्रेशन है जो क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं।
अब मैं कल ही डॉक्टर से बात कर रहा था, मैंने ये जब सुशांत के साथ हुआ तो एक चीज होती है एंजाइटी नर्वसनेस भी होती है। अगर आप एंग्जाइशियस ना हो तो जैसे मान लो मैं स्विमिंग भी करता था और कंपेटिटिव स्विमिंग करता था बचपन में दिल्ली में, तो अगर वो एंजाइटी ना हो तो आप अपना बेस्ट दे नहीं सकते। अगर आपको एंजाइटी ना हो शॉट देने की, उससे पहले आपका आपका पूरा हार्ट तेज ना चल रहा हो, ये ना हो, तो आप करेंगे कैसे काम? वो भी एंजाइटी है। लेकिन फिर वो एंजाइटी अगर कॉन्स्टेंटली रहे तो फिर वो डिप्रेशन में जा सकती है, फिर वो डिप्रेशन क्लिनिकल भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये कॉम्प्लेक्स चीज है। लेकिन तो आपका ये जो कहना है कि हमारे इंडस्ट्री में एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, जो मिलते रहना चाहिए, जिसमें डॉक्टर भी हो, आसपास में एक्टर एक दूसरे से बात करें, मैं तो हमेशा करता हूँ। मैं तो लोगों से, मेरे दोस्त हैं, सबको फोन करके पूछा था आप कैसे हो, आप स्पेशली लॉकडाउन में, भैया सब ठीक है ना, वो मुझे फोन करते सब ठीक है ना। तो ये ऐसा चलता रहता है। जैसे मैं एक चीज कहूंगा, जैसे ये है कि जो चीज करनी है आपने इतने पैशन से करो, जो जितना पैशन है, जितना लगाव है, जितना लगन है, उससे आप जो करना है, जो भी करो वैसे ही करो। लेकिन उसके रिजल्ट से मत जुड़ जाओ, नहीं तो डर आता है कि यार रिजल्ट, तो फिर आप थोड़े से कहते हैं जो भी चीज आप कर रहे हो, जैसे आप अगर एडिटिंग कर रहे हो तो आप उस वक्त आप एडिटिंग का रिदम ढूंढ रहे हो, और एडिटिंग के रिदम के साथ ऐसा ये है कि यार ये अगर अच्छा ना लगे लोगों को, अगर डायरेक्टर को अच्छा ना लगे या सक्सेसफुल ना हो, वो बात छोड़ देनी चाहिए। ये तो सब फिलॉसफीज में लिखा है, तो गीता में भी लिखा है। लेकिन ये जरूर है कि उस मोमेंट में आप एक बार घुस जाओ तो वो मोमेंट का पैशन सबसे बड़ा होता है। उसका रिजल्ट तो फिर वही हो जो रिजल्ट किसने देखा है, जो रिजल्ट होगा वो होगा। लेकिन उसकी वरी, उसका फिक्र आप करते रहो कि इसका रिजल्ट क्या है, तो फिर तो आप काम कैसे करोगे? एंजाइटी जरूरी है, आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन डिप्रेशन नहीं है। तो एंजाइटी को अपनाइए और डिप्रेशन को दूर रखिए, ये हमारे हाथ में है। हाँ, उसके लिए सपोर्ट ग्रुप चाहिए। हाँ। We understand the whole glamour industry, whether it is media as a whole or a film industry. How are you rating it highest in terms of getting you insecure, in terms of people not finding their footing when they come in here? नहीं, all of media is tough. आप वहाँ जाइए, बम्बई में आप रहते हैं ना, तो वहाँ लोखंडवाला जाइए, go to the coffee shops, और सब जगह सब एक्टर्स वहाँ बैठे हैं जो सब ब्रेक मांग रहे हैं, स्ट्रगल, कहते हैं ना स्ट्रगल करो। मेरे बारे में कहते हैं ना लोग कि यार ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया, फिर हॉलीवुड चला गया। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं जब आया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था लंदन में, फिर मेरा दिल किया कि नहीं, अभी अकाउंटेंसी नहीं करूँगा, क्रिएटिव बिजनेस करूँगा। तो लोग कहते हैं कि मासूम बना ली, लेकिन मुझे 12 साल लगे मासूम बनाने में। 12 साल यहाँ बम्बई वापस आके सब कुछ छोड़ छाड़ के 12 साल के बाद बनी मासूम। तो 12 साल एक लफ्ज, लोग कहते हैं क्या कर रहे हो भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं अक्सर, मेरे पास लोग आते हैं, सर मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, यहाँ 5 साल हो गए, मेरे पेरेंट्स नाराज हैं। मैंने कहा यार मुझे 12 साल लगे, तो मैं क्या बोलूँ आपको। और अगर तो अच्छा, फिर इसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कल आपको या कल सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिलासा देने वाले बहुत होते हैं, आपके स्पेशली विद यंग गर्ल्स ऑल्सो। आप किसी के दफ्तर जाइए, किसी को मिलने, हाँ सर हमारे पास एक फिल्म है, वो बस 6 महीने लॉन्च होने वाली है, और आपको हीरो ले लेंगे या आपको डायरेक्टर ले लेंगे, आपको हीरोइन ले लेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलते हैं, वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। So it's very uncertain, this business. You have to be strong. शिखर सर, आपकी बात से एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि बॉलीवुड में, ये सच है कि इंडिया में बॉलीवुड का जो इन्फ्लुएंस है, आई डोंट नो हर कंट्री में इतना है कि नहीं। हर इंसान जो पढ़ाई में भी कितना तेज हो, whether even we have Sushant who was very good in physics and he had got award, or you have been a chartered accountant, हम सब मीडिया बैकग्राउंड से, बट हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है, फिर हम इस तरफ बढ़े हैं। इतना इन्फ्लुएंस जो बॉलीवुड का इंडिया पे है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? बिकॉज एज अ फिल्म इंडस्ट्री, the content that you create, that has a lot of impact on every mind. हर छोटा बच्चा, whether it's a girl, they want to either be Miss Universe, Miss India or a film actor, तो इतना larger than life image जो create हो रहा है,
इतना इम्पैक्टफुल इंडस्ट्री है, तो कितना रिस्पॉन्सिबल इस इंडस्ट्री को होना जरूरी हो गया है, बिकॉज इट कैन बी डेडली ह्यूमन बीइंग्स इन एवरी मैन। हर बच्चा अपना फील्ड छोड़ के तरफ भागता है। हाँ, अभी क्या हो गया है कि सोशल मीडिया और फिल्म कंटेंट में फर्क नहीं रहा। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो फिल्म इंडस्ट्री को इकट्ठा होके ये तय करना है कि भैया हम अपने सोशल मीडिया पर क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते हैं। अच्छा। एक सेल्फ सेंसरशिप आनी चाहिए उस पे, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपकी जो आपने एक सोशल मीडिया पे चले आपने एक कमेंट डाला, 1 मिलियन कमेंट्स उसके ऊपर आ जाते हैं बाकी लोगों के, और वो कमेंट आपका छोटे से होते हैं ना। एक जैसे ट्विटर पे आप कितना कुछ बोल सकते हैं, एक छोटी सी चुटकुला कुछ आपने छोड़ दिया है ना, तो उस पर आपने पूरा एक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ये ट्विटर पर तो नहीं कर सकते, नहीं, तो छोटी सी बात आ गई बाहर, तो उसके ऊपर लोग असम्पशन के ऊपर असम्पशन, पे ट्रोल्स के ऊपर ट्रोल्स। तो ये थोड़ा बहुत हमारी इंडस्ट्री को बैठ के ये तय करना है कि हम अपने आप को क्या खत्म कर रहे हैं, अंदर अपने आप को खोखला बना रहे हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जब मैंने मासूम बनाई थी, मिस्टर इंडिया बनाई थी, बैंडिट क्वीन बनाई थी, उस वक्त अगर मैं बहुत फेमस होता तो लोग मुझे जानते नहीं थे, तो सोशल मीडिया इतनी ही एक्सप्लोसिव होती जितनी आज है, तो क्या वो फिल्म वैसे बनाता मैं कि इन्फ्लुएंस हो जाता मैं? और क्या अगर किसी को पसंद नहीं कि यार एक लड़का कहीं से आ गया है, वहाँ लंदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी को क्या मालूम कि 12 साल वेट किया था, अरे ये तो फिल्म बना गया अच्छी, चलो इसके अगेंस्ट बोलो, इसके अगेंस्ट ट्रोल करो, है ना, ताकि लोग जाकर देखें ना। ये चलता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको कंट्रोल करना चाहिए शायद पूरी इंडस्ट्री को, और वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, टेलीविजन इंडस्ट्री वगैरह सबको मैंने बैठकर बात करनी चाहिए कि भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे रखें हम। तो ये दूसरी बात है हमारे इंडस्ट्री में कि आपकी कहानी सब जानते हैं, आपको सब जानते हैं, आपको सब पहचानते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ लोग को आपके बारे में बारीक बारीक चीजें मालूम है, क्योंकि आजकल तो मीडिया छोड़ती नहीं ना, अब तो सोशल मीडिया भी है। तो आपने क्या किया, आपने क्या सोचा, लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, क्या किसके साथ आपका रिश्ता चल रहा है, किसके साथ नहीं चल रहा है, वो कौन कह रहा है, इतनी आपके बारे में, इतनी आपकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल जैसे ना चद्दर बिछा देते हैं सड़क पे जिसके ऊपर लोग जा सके, एक चद्दर बिछ गई, वो आपकी जिंदगी है, उसके ऊपर लोग चल रहे हैं। ऐसा है सोशल मीडिया, आपको ट्रैम्पल कर रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, आपको नीचे गिरा रहे हैं, तो उसको सरवाइव करना काफी मुश्किल है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर लगाम डालनी चाहिए लोगों को। पहले क्या इतना मुश्किल होता था बिना सोशल मीडिया के मूवीज के लोगों तक पहुंचाना? मतलब क्या टेक्नोलॉजी ने हेल्प नहीं किया? सोशल मीडिया के थ्रू आपकी रिलीजेस और इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती 130 करोड़ पॉपुलेशन में? आपने इतनी सारी मूवीज बनाई हैं, क्या उस टाइम की रिलीजेस एंड अभी में आपको फर्क दिखता है कि मुझे टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर बट इट हैज कम विद अ लॉट ऑफ कॉस्ट आल्सो, एज यू आर टेलिंग अस? There was no social media when I made Masoom. मिस्टर इंडिया बनाई थी तब तो सेल फोन भी नहीं था। बैंडिट क्वीन के वक्त तो किसी को पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था सोशल मीडिया से नहीं बन रही थी। तो जब सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई ना, तो तब तक मैं अमेरिका चले गया था, तो वहाँ बना रहा था फिल्में। वहाँ सोशल मीडिया है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। टेक्नोलॉजी नहीं आपको ऑनलाइन फिल्म दी हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप घर पे बैठे फिल्में देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, अमेज़न पे देख रहे हैं, हॉटस्टार पे देख रहे हैं। तब तो ये था ही नहीं, तब तो ऐसा था कि एक चैनल था दूरदर्शन पे, आपकी फिल्म आए या ना आए। अब टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत टूल्स दिए हैं और फिल्म बिजनेस बहुत फैल गया, बहुत बढ़ गया। पूरा एंटरटेनमेंट बिजनेस टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत बड़ा गेम हो गया है। Actors में what is your identification of a good actor? When we try to understand, हमारे फिल्म का जॉनर बहुत वेरी करता है।
कोई जॉनर है जो मेथड एक्टिंग बोलते हैं, कोई है सुशांत की फिल्में अगर आप देखिए बहुत स्पेसिफिक रियलिस्टिक थी, बायोपिक हो या फिर ब्योमकेश बख्शी हो, या फिर हम और एक्टर्स को देखिए, वी हैव शाहरुख और द खान और द कपूर्स, उनका लार्जर देन लाइफ एक क्रिएटिव के ऊपर फिल्म बनती है. How do you identify as a most renowned and most successful director who is a good actor? कैसे पहचानते हैं कि एक अच्छा एक्टर ये है? देखिए 2 या 3 किस्म की एक्टिंग होती है. एक तो जैसे बहुत बड़ा स्टार बन जाए कोई, तो लोग उस स्टार को स्टार ही बनना देखने जा पैसे देते हैं. तो जैसे सलमान खान है, तो सलमान खान को जब पिक्चर देखने जाते हैं तो सलमान खान जब तक अपनी शर्ट नहीं उतारेंगे, कहीं ना कहीं फिल्म में लोगों को नहीं मारेंगे और फिर बड़े भाई नहीं बनेंगे और प्रोटेक्टर नहीं बनेंगे, तो लोग पैसे इतने देते नहीं है. वो तो सलमान खान एज सलमान खान को देखने जाते हैं, बहुत जाते हैं. Personality is bigger than the story. Personality is bigger than the person also. एंड तो ये तो तब से चल रहा है. देवानंद को चामे ही देखने जाते थे, देवानंद को क्यों, तब से चल रहा है ये. तो दूसरी किस्म की, जिसको मैं एक्टिंग नहीं कहूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस है, जैसे मनोज बाजपेयी हैं, जैसे सुशांत थे, जैसे स्मिता पाटिल थी, जैसे शबाना है, जैसे कि आजकल कितने नए नए एक्टर आ गए हैं जो अपनी पर्सनालिटी बदलते रहते हैं. वो उस रोल में घुस जाते हैं. जैसे मैंने जब बैंडिट क्वीन बनाई थी, तो एक चीज मैंने तय की थी कि मैं किसी फिल्म एक्टर को नहीं लूंगा, मैं नए लोगों को लूंगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्क्रीन पर नहीं देखा. तो अपना स्क्रीन पर सोना उन्होंने नहीं देखा, तो डिस्कवर करेंगे. तो सीमा और मनोज और सब जितने बाकी एक्टर थे, वो अपने कैरेक्टर्स में चले गए थे. वो सीमा विश्वास नहीं थी, वो फूलन देवी बन गई थी. तो मुझे याद है फूलन फिल्म के बाद उसको बहुत टाइम लगा था फूलन देवी को छोड़ना, क्योंकि वो उसमें घुस गई थी. उसी की इम्बाइब, उसी का गुस्सा, उसी का वेंजेंस, वो सीमा बन गई थी फूलन देवी. तो मुझे अभी तक याद है उसके साथ मैं बैठा, उसके बाद वो कहा कि भैया फूलन देवी को छोड़ दो, तो फिल्म खत्म हो गई है, तुम अपनी जिंदगी में चले जाओ वापस. तो ये दूसरे किस्म का है. मैं ज्यादातर वही फिल्में बनाता हूँ जिसमें एक्टर ऐसे हों जो अपनी पर्सनालिटी छोड़कर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर की पर्सनालिटी में चले जाएं. तो दो अलग किस्म के हैं. फिर बीच के भी हैं, जो एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं और फिर लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी भी नहीं छोड़ते, पर उसी पर्सनालिटी में वो कैरेक्टर को जमा लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी में कैरेक्टर को ले आते हैं. तो ये 3 किस्म के हैं. ये जो गैप है ना, जो कैरेक्टर को प्ले करते हैं और एक जो स्टारडम और पर्सनालिटी लार्जर देन लाइफ देन द पर्सन होती है, उस गैप के बीच में ही शायद एम्बिशन आ जाता है कि देयर आर 2 कैटेगरीज यू आर सेइंग. एंड क्या ये ओवरलैप होने की कोशिश होती है कि जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो स्टारडम की तरह जाने लगते हैं, जो स्टारडम वाले हैं वो कैरेक्टर के रोल पे स्विच करना चाहते हैं? बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज डिमांड ऑफ द कंटेंट इज चेंजिंग. लोगों की पसंद बदल रही है. रियलिस्टिक लोग अब ऐसे कैरेक्टर से जुड़ते हैं जो थोड़ा रियलिटी में रिलेट कर पाए. सो आप अगर अमिताभ बच्चन का करियर देखिए तो वो शुरुआत में तो वो बिल्कुल कैरेक्टर पार्ट्स थे, अपनी पर्सनालिटी छोड़ के आनंद में और वैसी फिल्में बनाई. फिर इतने बड़े स्टार बन गए वो आहिस्ते आहिस्ते, तो फिर वो स्टारडम कॉट अप विद हिम. I don't think he tried to be that star. Stardom just caught up with him. And now he's back to playing character roles, and he's back to absorbing, creating characters. And he's Amitabh Bachchan, but in a character now. So ये मुझे नहीं मालूम कि I don't think the stardom is something that you can plan on. You can't plan on stardom. You can plan on being a good actor. You can plan on being good on screen. You can plan on being presentable on screen. But I think stardom just happens. And when it happens, then it takes over. It just takes you over. Then you are imprisoned and caged by your own stardom. But of course, you get huge money and fame. But it can become a cage. And it is not something everybody can handle. Because it's not something, because everyone comes from a different background.
सबका वैल्यू कल्चर बहुत अलग होता है. So even while working and the stardom catches up with you, how difficult can it be कि हर कोई stardom को संभाल सकता है? नहीं. I mean, the world is filled with people who've had become huge stars and are constantly, वो फिर जब उनको अपने आप शीशे में देखो तो मैं कौन हूँ, मैं स्टार हूँ या मैं हूँ, दोनों में फर्क नहीं दिखता. और जब वो फर्क दिखना बंद हो जाता है तो तब बहुत मुश्किल हो जाता है. और फिर वो जो डर है कि वो स्टारडम चले जाए, वो बहुत मुश्किल होता है. वो स्टारडम चली जाए, उसका फियर बहुत बड़ा हो जाता है. और आपको पता नहीं आप स्टार क्यों बने, तो आपको पता ये भी नहीं पता होगा कि आप स्टार जब बनना बंद हो जाएंगे तो वो क्यों हुआ, समझ में नहीं आएगी. क्या डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर दैट स्पेस इज आल्सो देयर कि एक एक्टर तो उससे गुजरता है, क्या एक डायरेक्टर भी उस फेज में जा सकता है जहाँ पे there is a lot of, now we see directors and producers given a lot of fame and recognition beyond a point which we could not see in the earlier days. How do you define that space going on? Directors used to have a lot of fame of recognition. ये phase होता है. जब गुरुदत्त फेमस थे तो बहुत फेमस थे, बिमल रॉय फेमस थे तो बहुत फेमस थे, विजय आनंद फेमस थे तो बहुत फेमस थे. उसके बाद एक दौर आया जैसे सुभाष घई की फिल्म, सुभाष घई की फिल्म है देखने जाते हैं. फिर वो फेज चले जाता है जब एक्टर बहुत बड़ा बन जाता है, स्टार्स बहुत बड़े बन जाते हैं, तो डायरेक्टर का नाम इतना आता नहीं है. लेकिन ये मैं कहूँगा कि अच्छी फिल्में तभी बनती हैं जब डायरेक्टर की फिल्म देखने जाते हैं लोग ज्यादा. हॉलीवुड में गए, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है हमारे सिनेमा से? इट्स नॉट कंपैरेटिव. आई कैन understand that the West and India, we can never compare, we should not in any aspect. But since you have been there, what is that we still are there to go with? Where are we seeing to grow in Indian cinema? Are we stuck? Are we complacent? क्या हमारे content quality में वो growth in the evolution, na thoughts are not coming because the work that you can do abroad, can you do the same work in India? Is the reception there? There is, of course, there's a difference. It's also the difference is how cinema developed in each culture. Technology तो Western है, लेकिन जो हमारा content है, हमारा content India में it's evolved from नौटंकी theater. तो जब गांव में नौटंकी जाता था या रामलीला की आता था, तो अब आप देखिए कि नौटंकी क्या था, एक थिएटर ग्रुप जाता था गांव में, तो वो आपको कहानी सुनाते थे, लेकिन कहानी के बीच में गाने भी डालते थे ताकि आप एंटरटेन हो. वहाँ की कुछ पहले पूछ लेते थे इस गांव में क्या भाई कौन है और क्या उनकी कहानी क्या है, उस पर एक कॉमेडी स्किट बना कर दे देते थे. तो हमारा जो थिएटर फोक थिएटर था, तो हमारा डेवलपमेंट हुआ फिल्म इंडस्ट्री में फोक थिएटर पर. और वो फोक थिएटर का जो हमारा कल्चर है वो आज भी हमारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं, इंडियन सिनेमा. वो बहुत स्पेसिफिक है. इसलिए अब क्या हम वो फोक थिएटर का जो कल्चर है उसको छोड़ दें? मैं तो नहीं कहता. मैं तो कहता हूँ कि हम अपने कल्चर को नई किस्म के कंटेंट से अडेप्ट करें, जो कर चुके हैं. कोई ऐसी जैसे लोग, मैंने जब एलिजाबेथ बनाई थी, मेरी पहली फिल्म थी इंडिया से बाहर, और एक बहुत बड़ी हस्ती पे बनाई थी. और जब मैं बैठा, मैंने कहा ये फिल्म मैं कैसे बनाऊं? मैं अंग्रेज तो हूं नहीं, ना अंग्रेजी इंग्लिश हिस्ट्री को इतना मैं पहचानता हूं या जानता हूं, या इतना शौक भी नहीं है. तो मैं कौन हूँ? तो मैंने सोचा यार मैं तो सीखी तो मैंने इंडिया में है, बॉलीवुड नहीं कहूँगा, फिल्म मेकिंग. मैं एक एशियन हूँ, हमारे एशिया में कहानी सुनाने का तरीका दूसरा है. तो फिर मैं बस उसी में लग गया कि मैं तो एक एशियन फिल्म बना रहा हूँ. जैसे चाइनीज फिल्म्स होती है ना, वो अलग होती हैं सबसे, इंडियन फिल्म्स अलग होती हैं, हमारे कल्चर स्पेसिफिक होती हैं. तो मैंने स्पेसिफिकली इंडिया और एशियन कल्चर को लेके मैंने एलिजाबेथ बनाई. और मुझे आज भी लगता है इतने ऑस्कर नॉमिनेशंस बने, इतनी सक्सेसफुल हुई. अगर मैं कहता कि मैं तो अंग्रेज डायरेक्टर कॉपी करके अंग्रेजों की तरह फिल्म बनाऊं, तो पिक्चर बिल्कुल नहीं चलती. वो इसलिए अपने कल्चर के में रहना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है. एलिजाबेथ को कुछ लोग कह रहे थे ये तो बॉलीवुड फिल्म है, तो मैं बहुत खुश हुआ. मैंने कहा यार अगर 11 ऑस्कर नॉमिनेशन मिल गए तो बॉलीवुड फिल्म को बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे.
हाँ जी। आज के दौर की कौन सी मूवी है जो आपको लगता है इज क्वाइट बैलेंस्ड, लाइक गली बॉय को ऑस्कर तक लेके जाया गया, सो इज यू अंडरस्टैंडिंग कि आज के कंटेंट में कौन सा ऐसा मूवी है जो आपको लगता है बैलेंस, या फिर वो सिर्फ स्टारडम है जो उसको उठा दे रही है, इट्स फाइंडिंग इट्स प्लेस इन द इंडियन व्यूअर्स माइंड? मुझे आजकल जो इंडियन कंटेंट ऑनलाइन आ रहा है वो ज्यादा पसंद है। उसमें लोग रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, उसमें दुनिया अलग हो सकती है, उसमें बॉक्स ऑफिस का डर इतना नहीं है यहाँ। और खैर बाहर डिज्नी वगैरह जब पिक्चर बनाते हैं उनको सब ऐसे लगता है यार पहले ही वीक में अगर पैसा नहीं बना तो गिर जाएंगे थिएट्रिकल में, तो उसके डर से बहुत लोग पिक्चरें उस डर से बनाते हैं। यार गाना अच्छा स्टार ले लो, ऐसे कर लो कि पहला जो फर्स्ट वीकेंड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो जो फर्स्ट वीकेंड का डर है वो चले गया ऑनलाइन पे, तो अब वो लोग कहानी ज्यादा देखते हैं, कैरेक्टर ज्यादा देखते हैं। मेरी मनोज बाजपेयी से बात हो रही थी, तो अभी ऑनलाइन बात हो रही थी परसों, एक्चुअली सुशांत पे थी, लेकिन अगली बार बात यही करूंगा उनसे कि उनको क्या लग रहा। फैमिली मैन जब उन्होंने की इतनी तारीफ हुई उनकी, और अभी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इतनी तारीफ हो रही है, लोग देख रहे हैं कि अलग अलग किस्म का कंटेंट हो। ये नहीं कि ये इंडियन कंटेंट नहीं है, इंडियन है, हिंदुस्तानी है, कल्चर इंडिया का है, लेकिन कल्चर वो बॉलीवुड का वो एक कल्चर है जो फर्स्ट वीकेंड का डर उसको मैं बोलता हूँ, वो कल्चर बहुत बैठ गया। फर्स्ट वीकेंड में क्या होगा, फर्स्ट वीक में कितना पैसा बनेगा, वो कल्चर बहुत 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 दबा दिया। 100 करोड़ 200 करोड़ की बातें तो आज भी होती है सर। ये मूवी ने 200 करोड़ बनाए, 400 करोड़ बनाए, ये नंबर्स तो अभी भी खेले जा रहे हैं। अभी भी इसके वजह से मूवी का सक्सेस होना नहीं होना काफी डिपेंड करता है। अब देखिए वो तो दिन गए ना, तो थिएटर बंद हो गए। मुझे नहीं लगता अभी 1 साल तक थिएटर खुलेंगे, तो अब तो सारे फिल्म्स ऑनलाइन जाएंगे। तो अभी अगर थिएटर नहीं खुले तो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की बात कैसे होगी, वो तो होगी ही नहीं। तो अब पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल गया है। तो पहले तो बहुत, जब तक ये कोरोना वायरस नहीं आया था, जब तक थिएटर नहीं बंद हुए थे, अब लोग तो सब कह रहे हैं कैसे होगा, 1 साल तक तो थिएटर खुलेंगे नहीं, 1 या 1.5 साल, और वो खुलेंगे भी तो फिर वो वैसी सीटिंग तो होगी नहीं जैसे आप बिल्कुल साथ साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, साथ साथ हंस रहे हो। जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है वो तो आप थिएटर गए और वहाँ एक आदमी औरत या बच्चा को जोर जोर से खांसने लगा तो सब भाग जाएंगे थिएटर से, है ना। तो ये तो अब ये कोरोना वायरस ने पूरा एंटरटेनमेंट बिजनेस बदल दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब वो गए जमाने 200-300 करोड़ के थिएट्रिकल बिजनेस के। आई एम एनीवे वेरी हैप्पी शेखर जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एंड मोर देन दैट आपकी बातों से हमको काफी ज्यादा, बिकॉज वी वर एक्चुअली इन अ सेटबैक ऑल ऑफ अस कि अब लाइफ में करियर परसू करे कि यहीं रुक जाए। आई थिंक यू काइंड ऑफ शोड अस अ वे कि कोई चीज परसू करने से नहीं डरना चाहिए, तरीका सही संभल के चले तो शायद सबके लिए रास्ता है आगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir, for entertaining us all along, sir, and guiding us. We would love to be in touch with you as India Podcast. And we hope Pani comes soon as a tribute to Sushant, as a tribute to all the people who worked with you on that film. We really pray that Pani can happen, and very soon, inshallah. Yeah, ठीक है. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Brought to you by India Podcasts in association with ICI Healthcare.